Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So आज हम लोग देखने वाले हैं ICSE सेमेस्टर 2 एग्जाम का स्पेसिमन क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। तो सेमेस्टर 1 का भी सॉल्यूशन मैंने दिया था, अब ये सेमेस्टर 2 का सॉल्यूशन है। तो ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है हम लोगों के सामने। तो सबसे पहले 10 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे आंसर्स ऑफ दिस। So first question is, when primitive data type is converted to its corresponding object of its class, it is called as, the answer is boxing. Okay, this is the answer, boxing. Next is, state the value of y after the following is executed. यहाँ पे char x equal to 7, तो 7 भी char में है और ये char डेटा टाइप है, एंड y इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर। सो हम लोगों को चेक करना है कि जो ये वैल्यू है ये लेटर है या नहीं है। तो जबकि ये बुलियन में है, इज लेटर है, तो ये बुलियन डेटा टाइप है। सो द आंसर विल बी फॉल्स। ओके, दिस इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज, give the output of the following string methods. Now see, Mississippi index of s, मतलब फर्स्ट वाला s का इंडेक्स आएगा, that is 2, and plus next one is last index of I, means 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 is the index of last I and plus. ओके, तो इसका वैल्यू आएगा 12, तो आउटपुट इज 12. नाउ नेक्स्ट इज corresponding wrapper class of int data type is, तो इसका आंसर है B. तो I कैपिटल होगा, रेस्ट लेटर स्मॉल होंगे. दिस इज द wrapper class for int data type. Now next one is variable that is declared within the body of a method is termed as. तो बॉडी के अंदर में जो वेरिएबल होता है जो कि बाकी प्रोग्राम में एक्सेसिबल नहीं रहता है, that is called as local variable. Okay, now next one, identify the correct array declaration statement. तो यहाँ पे अलग अलग से स्टेटमेंट आए हैं, तो कंफ्यूजिंग है, बट थोड़ा सा ध्यान से देखने से आपको पता चलेगा. द करेक्ट डिक्लेरेशन इज दिस वन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज a variable that is bounded to the object itself is called as instance variable. Next, the access modifier that gives most accessibility is public. Okay, next is, give the output of the following code. String A 26.0 and B 74.0, double C double D. तो हम लोगों को पता है कि दिस इज टाइप कास्टिंग, ये कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रिंग जो है ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू डबल वैल्यू, दैट मीन्स 26.0 प्लस 74.0. ओके, that means the answer is 100. If I'm not wrong, the addition of this is 100. Okay, now wrapper classes are available in dash classes java.lang package, इसमें wrapper classes होते हैं. Now for section B, I'll take you to the JCPP edit. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग ये देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ए क्लास टू डिक्लेयर एन इंटीजर एरे and accept the elements into the array and search for an element input by the user using linear search technique and display the element if it is found. Okay,
So let's go. Okay, so in this program we have to declare array of size n. So यहाँ पे मैंने n का पहले input लिया, then I have declared array size of n, and after that we have to input the elements, and after inputting elements we have to enter number to be searched. Okay, जो number search करना है उसको हम लोगों को यहाँ पे enter करना है. Then after that we have to check if the element is present in that array throughout the array. So here I have taken again array loop, and if array of I is equal to num, then break, and if I equal to n means अगर हम लोगों का सर्च n तक चला जाएगा, मतलब हम लोग लास्ट तक सर्च करेंगे, तो अगर नहीं मिलेगा that means search unsuccessful, else search successful and our number is present at that index. Okay, the size of the array, let's say suppose 5, enter 5 elements, enter the number to search, suppose 30, search successful, 30 present at index. Okay, now next program देखते हैं. Next question is define a class to declare character array of size 10, accept the character into the array and perform the following. Okay, हम लोगों को यहाँ पे upper case count करना है and vowels count करने, and यहाँ पे character array of size 10 हम लोगों को लेना है. Now let's again go to JCP edit. Question number 3. Okay, now see again यहाँ पे कैरेक्टर एरे इस तरीके से डिक्लेयर किया हुआ है. मैंने अपर केस काउंट के लिए cu वेरिएबल लिया एंड लोअर केस के लिए वॉवल्स के लिए cv इक्वल टू 0 लिया. एंटर 10 कैरेक्टर्स, we have to enter 10 characters like this, and after that we have to check if the variable is upper case or not, so greater than a and less than z, and इसमें हम लोगों को चेक करना है vowels. ओके, तो यहाँ पे vowels में मैंने सब स्मॉल लेटर्स किए हैं. यहाँ पे आप चाहे तो इसको कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और करके, और ये है count vowels and then number of uppercase and number of lowercase. Okay, okay. अब यहाँ पे जैसे कि a यहाँ पे हम लोगों का है vowel but it will not count as we have not given condition there, but we have to add there like a of I is equal to capital A, capital U, capital I, like that. Okay, so next our question is, let's check question number 4. Define a class to declare array of size 20 double data type, accept the elements into the array and perform the following. So हम लोगों को इसमें क्या करना है, print the sum of all the elements and highest value of the array. Highest value means largest number of the array हम लोगों को करना है. Okay, so let's again go to the JCP edit. Question number 4. Okay, so यहाँ पे हम लोगों को array डिक्लेयर करना है 20 का, डबल एरे करना है. यहाँ पे मैंने डबल एरे 20 का डिक्लेयर किया. देन एरे में एलिमेंट्स लिए, नेक्स्ट डबल लेना पड़ेगा जब हम लोग डबल इनपुट करते हैं. देन सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे इफ array of I is greater than L, L is equal to array of I. तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर मैंने निकाला, L is equal to 0 पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और हम लोग इस तरीके से हम लोगों को सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स भी मिलेगा और हाईएस्ट वैल्यू भी मिलेगा. ओके,
सो ये दोनों चीजें हम लोगों ने यहाँ पे निकाली है. लेट्स चेक आउटपुट. नाउ 20 नंबर्स. यहाँ पे जबकि डबल है हम लोग डेसिमल भी दे सकते हैं नंबर्स. ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को आउटपुट मिलेगा सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड हाईएस्ट वैल्यू. तो इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है वो हम लोगों को हाईएस्ट मिल जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग्स, कन्वर्ट देम इनटू अपर केस, चेक एंड डिस्प्ले बोथ आर इक्वल और नॉट. ओके, तो ये वाला प्रोग्राम भी अब हम लोग देखेंगे जेसीपी एडिट में. अब यहाँ पे हम लोग कोई भी प्रोग्राम जब आप देखोगे उसको ब्रेक करके देखिए एक बार. एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग्स, फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग्स. ये वाला प्रोग्राम बहुत ही इजी है. कन्वर्ट देम इनटू अपर केस, वी नो द फंक्शन टू कन्वर्ट इट इनटू अपर केस. आफ्टर दैट वी हैव टू चेक इफ बोथ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट. सो here I have checked, and if it is not equal, see ये वाला not equal है, not equal, then हम लोग को maximum length वाला जो string है वो display करना है. okay, and else लिखना है both strings are equal. so very simple program. इसको भी हम लोग run करके देखेंगे. enter any two strings. Suppose welcome to and take Vidya. Okay, so मैंने फर्स्ट वाला स्ट्रिंग दिया वेलकम टू एंड सेकेंड वाला दिया टेक विद्या. तो द स्ट्रिंग विद द हाईएस्ट लेंथ इज वेलकम टू. ओके, और आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हम लोगों ने स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट किया हुआ है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज define a class to accept a string, again convert it into lowercase and check whether the string is palindrome or not. Okay, we have to check if the string is palindrome or not. So ये प्रोग्राम है. यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को पहले स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन रिवर्स के लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेना है. पैलिंड्रोम स्ट्रिंग मतलब जो हम लोग रिवर्स करने के बाद भी अगर सेम स्ट्रिंग आएगा, दैट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग. ओके, सो एंटर एनी स्ट्रिंग, देन स्ट्रिंग 1 डॉट टू लोअर केस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस. सो प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से रीड करना है हम लोगों को. देन फॉर इंट i इक्वल टू str1 स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ -1. तो जब स्ट्रिंग को रिवर्स ही करना है तो हम लोग लास्ट वाला कैरेक्टर है वहां से स्टार्ट करेंगे एक्सट्रैक्ट करना. सो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रही हूँ. देन रिवर्स वाला जो हम लोगों का वेरिएबल है एम्प्टी स्ट्रिंग, इसमें हम लोग ऐड करते रहेंगे. And then we will use equals function, that str1 is string 1 dot equals reverse then palindrome, otherwise not palindrome string. Okay, तो check करते program. Enter any string. Let's see madam. It is palindrome string. Okay, now next program. Question 7.
define a class to accept and store 10 strings into the array and print the strings with even number of characters. So यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि 10 strings हम लोगों को करनी है एंटर, एंड आफ्टर दैट हर एक स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, एंड कैरेक्टर काउंट करने के बाद में हम लोगों को वहां पे देखना है कि काउंट ऑफ कैरेक्टर इज इवन और ऑड. ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लिया है, स्ट्रिंग का एरे हम लोगों ने बनाया है. ओके, एंड आफ्टर दैट स्ट्रिंग्स विथ इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर, ये लूप के बाहर में आपको लिखना है, एंड काउंट 0. एंड यहाँ पे हम लोगों ने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं. कैरेक्टर्स तब तक काउंट होते हैं जब तक हम लोगों को स्पेस नहीं मिलता है. दैट्स वाई जहाँ पे स्पेस मिलेगा वहां तक ही हम लोग काउंट करेंगे. एंड इफ काउंट मोड 2 इक्वल टू 0 देन स्ट्रिंग 1. ओके, मतलब वो वाला स्ट्रिंग हम लोगों को प्रिंट करना है. एक बार चेक करते हैं. ओके, तो यहाँ पे आउटपुट देखिए, स्ट्रिंग्स विथ इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 2, लाइक एंड माई. ओके, तो मैंने लिखा था वेलकम टू टेक विद्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू. तो इसमें से जितने भी इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के स्ट्रिंग्स है वो इनपुट हो गई. ओके, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज do like, share and subscribe my channel and also share this video with your friends. Okay, उन लोगों को भी हेल्प होगा. and all the best for your exams. Thank you.